friends, how are you? I hope you all are fine and safe at your place. Myself, Meenakshi Sharma, welcomes you on the online classes of Vidya Park Women Senior Secondary School. Beta, in my previous video session 27, I had explained exercise 8.1 and all the examples of exercise 8.1 with you guys. Now, in this video session 28, I would like to discuss the theorem, that is theorem 8.9, and this theorem is known as midpoint theorem. Got it? So after that, I would like to discuss some questions of exercise 8.2. So have a look. Now, this is the theorem 8.9. The theorem is the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. Means, okay, look at it. Suppose you have given a triangle. A triangle is given to you. This is the triangle ABC. What is this? The line segment joining midpoints. Midpoints को join करिए two sides of a triangle. किसी भी triangle की two sides कौन सी हो गई? AB और AC. तो इसका midpoint suppose D है और इसका midpoint suppose E है. तो ये दो मिड पॉइंट्स हो गए. लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स. ये दो साइड्स के मिड पॉइंट्स हो गए. अब इनको ज्वाइन कर दो. ठीक है. दिस मिड पॉइंट आफ्टर जॉइनिंग दिस लाइन सेगमेंट यू हैव टू प्रूव दैट दिस लाइन सेगमेंट, दैट मींस द लाइन सेगमेंट डी इज पैरेलल टू बीसी. ये आपको प्रूव करना है. गॉट इट? सो व्हाट इज गिवन? यू हैव गिवन a triangle ABC in which D is the midpoint of AB. That is, if D is the midpoint of AB, that means AD is equal to DB. Also, E is the midpoint of AC. If E is the midpoint of AC, that is, it means AE is equal to EC. This is given to you, beta. Got it? Now to prove DE is parallel to BC. Midpoint theorem क्या कहती है कि अगर आपने दो sides के mid point को join करा, तो after joining, whatever the line segment is going to form, this line segment will be parallel to the third side. Third side means the side BC. तो ये midpoint theorem है, which is you have to prove. Got it? Now for this construction, extend DE in such a way. Extend DE at F. DE को at some point तक extend करना है. Call this point at F as F and join FC. Sorry. Okay. So you can say that AB extend DE at F in such a way, after joining FC in such a way that AB is parallel to FC. This implies AB is parallel to FC. AB किसके पैरेलल आ जाए? FC के. ऐसे आपने एक्सटेंड करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है. ठीक है. सो आई एम डूइंग द प्रूफ. नाउ कंसीडर दीज टू ट्राइंगल्स. ट्राइंगल ADE and triangle EFC. ये दो ट्राइंगल्स मैंने लिए. Now I'm going to prove that these two triangles are congruent. How will you prove? Look at it. Can you say that this angle is 1 and this angle is 2? And you can say that angle 1 is same as angle 2. Why? Because vertically opposite angle. Angle 1 is same as angle 2, vertically opposite angle. When two lines are intersecting, in chapter number 6, when two lines are intersecting, in that case you can say that vertically opposite angles are equal.
Got it? So this is the first condition. Now the second condition is DE is equal to EF. DE is equal to EF because E is the midpoint of DF. Got it? Also, can you say that AE is equal to EC? AE is equal to EC. Why? Because it is given na? E is the midpoint of AC. E is the midpoint of AC. E AC का midpoint है. So from these three conditions, can you say that triangle ADE is congruent to triangle EFC by SAS congruency, two sides and the included angle. Got it? So from this fact, अच्छा ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. और बेटा अभी आपने कहा था कि AB क्या है? पैरेलल है FC के. ऑल्सो AB पैरेलल है FC के. AB FC के पैरेलल है. Okay, so in that case you can say that AD is equal to FC also. Before this beta you have to write, because you have proved ना कि triangle AD is congruent to triangle EFC. बेटा ये दोनों triangle आपने prove करे कि congruent है. तो by simplicity can you say that AD is equal to FC? AD is equal to FC by simplicity. ठीक है? तो अब यहाँ से क्या देखो, AD FC के पैरेलल है, सॉरी AD FC के इक्वल है. और from the given condition AD is equal to what? BD. So this implies that BD is equal to FC because AD is equal to BD. बेटा देखो आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया. कॉन्ग्रुएंट करने के बाद आपने बोला कि AD FC के इक्वल है बाय सिम्प्लिसिटी. बट यू नो दैट AD is equal to BD. So you can say that ना कि BD is equal to FC. अच्छा देखो BD FC के इक्वल है. BD FC के इक्वल है and AB is parallel to FC also and AB is parallel to FC also. So this implies that BD is parallel to FC. बेटा ये पूरी लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल है. तो इस पूरी लाइन सेगमेंट का हाफ इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा? तो दिस इंप्लाइज दैट BD इज पैरेलल टू FC. जब BD FC के पैरेलल है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, when BD is parallel to since BD is parallel to FC, जब BD FC के पैरेलल है, this implies that BD FC is a parallelogram. BD FC क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया. बेटा ये एक पैरेललोग्राम हो गया. तो जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो देखो, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट DF इज पैरेलल टू BC. तो DF भी पैरेलल होगा BC के, क्योंकि BD FC पैरेललोग्राम है. तो DF का हाफ कितना है? DE है. तो दिस इंप्लाइज दैट DE इज पैरेलल टू BC. यही तो शो करना था आपको. हेंस प्रूव्ड. आई होप यू अंडरस्टूड. अब बेटा इसका कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स उसका आपको प्रूफ नहीं करना है. इसका कन्वर्स क्या कहता है? मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई ट्राइंगल, अगर किसी ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो वो थर्ड साइड के क्या होती है? पैरेलल होती है. ठीक है ना? तो अब मिड पॉइंट थ्योरम उल्टा है. वो क्या कहती है कि अगर DE पैरेलल है BC के, अच्छा इस कंडीशन से आप ये भी कह सकते हो DE पैरेलल है BC के एंड DE is also equals to half of BC. ये भी है. DE पैरेलल भी है BC के और DE half of BC भी है. इससे ये कंडीशन भी आती है. ठीक है? तो इसका कन्वर्स क्या कहता है कि अगर DE half of BC है, ठीक है, DE पैरेलल है BC के, तो जो D और ये होंगे ना वो उसके मिड पॉइंट होंगे. समझ में आया क्या है? कंडीशन क्या है
कि आपको मिड पॉइंट्स गिवन है, तो आपने बोला है कि लाइंस पैरेलल है. इफ द मिड पॉइंट्स आर गिवन देन यू हैव प्रूव दैट द लाइंस आर पैरेलल. इन शॉर्ट यू कैन से दैट जब लाइंस पैरेलल है तो ये मिड पॉइंट होंगे, ये बाय कन्वर्स है. ठीक है, थैंक यू सो मच. बेटा लेट start with exercise 8.2 question number 1. ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and AD. Look at here. बेटा ABCD is a quadrilateral. ABCD क्या दिया हुआ है? Quadrilateral है in which P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of DC and S is the midpoint of AD. This is given to you. And also AC is the diagonal. This is the AC. This is the diagonal of the quadrilateral ABCD. You have to show that SR parallel to AC and SR half of AC. Second, PQ is equal to SR. And in third, you have to prove that PQRS is a parallelogram. So, how will you show this question? How will you prove this question? By using midpoint theorem. Midpoint theorem में आपने क्या किया था, मैं रिकॉल करा दूं. Midpoint theorem कहती है कि अगर कोई ट्राइंगल है ABC, got it बेटा, और उस ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट्स है, मान लो D और E. अगर मैं इस दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हूँ तो मिडपॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर D AB का मिड पॉइंट है और E AC का मिड पॉइंट है, ठीक है, तो जो DE होगा, DE पैरेलल होगा BC के एंड DE हाफ ऑफ BC होगा. ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है. क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम. कि कोई लाइन अगर इन अ ट्राइंगल D and E are the two mid points of the triangle ABC, then this line segment DE is parallel to the third side and half of it. ये है क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, तो मैं इसका यूज करके क्वेश्चन करूंगी. ओके, doing the proof or you can say the solution. देखो बेटा, इन ट्राइंगल ADC, मैं सिर्फ ये ऊपर वाला ट्राइंगल ले रही हूँ. इन ट्राइंगल ADC, अच्छा इस वाले ट्राइंगल में आप देखो S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD and R is the midpoint of DC. R is the midpoint of DC. देखो बेटा, इस वाले ट्रायंगल में मैं इसकी बात ही नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल में S AD का मिड पॉइंट है और R की साइड DC का मिड पॉइंट है. So by using midpoint theorem, can you say that SR is parallel to AC? So by using midpoint theorem, this SR is parallel to AC, SR parallel to AC and SR is half of AC. बेटा ये ऐसे तो बना है, देखो ये ट्रायंगल कैसे, मैं अलग से बना के दिखा रही हूँ. ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, DAC, यहाँ पे S है और यहाँ पे क्या है, R है. तो ये वाली जो लाइन है SR पैरेलल है AC के और SR क्या है, हाफ ऑफ AC. क्यों है? Because S is the midpoint of AD and R is the midpoint of DC. So by using midpoint theorem, you can say this thing. So this is the first part proof. Mark this equation number 1, first proof. आपका first part क्या हो गया? Directly by using midpoint theorem proof हो गया. Second part में आपको proof करना है PQ किसके इक्वल है, SR के. इसको 1 मार्क करा. Now similarly in triangle ABC, इस वाले ट्रायंगल में देखो बेटा, P मिड पॉइंट है AB का, P मिड पॉइंट ऑफ AB and in this triangle Q is the midpoint of BC, Q midpoint of BC, Q किसका midpoint है, BC का. So by using midpoint theorem, बेटा आप देखो नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो PQ पैरेलल हो जाएगा AC के. PQ पैरेलल टू AC and PQ
ठीक है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 देखो पी क्यू पैरेलल है एसी के, और एसी किसके पैरेलल है, एस आर के। तो पी क्यू फ्रॉम 1 and 2, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, एंड इधर देखो एस आर भी हाफ ऑफ एसी है और पी क्यू भी हाफ ऑफ एसी है, तो हाफ ऑफ एसी हट गया, तो पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एस आर के, एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। यही तो प्रूव करना था आपको, ठीक है। मैं दोबारा से कॉल करा रही बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देखो पी क्यू एसी के भी पैरेलल है और एसी एस आर के पैरेलल है, तो पी क्यू एस आर के पैरेलल हो जाएगा। इन द सेम वे पी क्यू हाफ ऑफ एसी है और हाफ ऑफ एसी किसके इक्वल है, एस आर के, तो पी क्यू एस आर के इक्वल हो जाएगा। दिस प्रूव योर सेकेंड पार्ट, सेकेंड प्रूफ, ठीक है। अब आपको क्या प्रूफ करना है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। आपको पता है पैरेललोग्राम के लिए अगर टू ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है तो वो पैरेललोग्राम होता है। इधर आप देखो पी क्यू एस आर के इक्वल भी है और पी क्यू पैरेलल भी एस आर के, तो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया। सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, बेटा पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम शो करने के लिए क्या करोगे, ये वाली साइड इसके इक्वल भी होनी चाहिए और पैरेलल भी होनी चाहिए, वो आपके पास आ गई। सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, सो दिस implies that PQRS is a parallelogram. This is the third part, third proof. I hope you understood this question. This is 8.2 question number 2. ABCD is a rhombus and P, Q, R and S are the midpoints of the side AC, BC, CD and AD respectively. ठीक है, सबसे पहले मैं ABCD rhombus बना रही हूँ। A, B, C, D. This is the rhombus. Beta, P is the midpoint of. This is beta AB. AB, BC, CD, and AD. P is the midpoint of AB. Q is the midpoint of BC. R is the midpoint of DC, and S is the midpoint of AD. This is given to you. Got it? From the question, I have done this. After joining all these points P, Q, R, S, बेटा रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो P है ना वो AB का मिड पॉइंट है, जो Q पॉइंट है वो BC का, R is the midpoint of CD and S is the midpoint of AD. Respectively का मतलब one goes with next one. Got it? So after joining all these points, a figure is formed. What type of figure? Figure is PQRS. एक quadrilateral PQRS बना है. Now you have to show that this PQRS is a rectangle. आपको क्या शो करना है कि ये जो PQRS फिगर है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है. ओके, सो स्टार्ट विद द प्रूफ. कंस्ट्रक्शन जॉइन AC. कंस्ट्रक्शन जॉइन AC. AC क्या है बेटा? AC is the diagonal of quadrilateral ABCD. AC जो है वो diagonal है किसका? ABCD का. एक चीज और बेटा, what is given and what you have to prove. आपको क्या given और क्या prove करना है, मैं proof लिख लेती हूँ. To prove PQRS is a rectangle. बेटा ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है? तो गिवन और टू प्रूफ अपने आप लिख लेना. अगर मैं किसी क्वेश्चन में नहीं लिख रही ना तो बेटा इट इज वेरी वेरी कंपल्सरी टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो आप लिख लेना, मैं नहीं लिखूंगी, गिवन और टू प्रूफ नहीं लिखूंगी बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. यू हैव टू राइट ऑन योर ओन. गॉट इट? सो कंस्ट्रक्शन जॉइन AC. सो is a rectangle. ठीक है? Now in triangle ACD, ध्यान से देखना बेटा, in triangle ACD in the same way which I did in question number 1. S is the midpoint of AD. S midpoint of AD
comma, R is the midpoint of DC, R midpoint of DC, R किसका midpoint है? DC का. So by midpoint theorem, by using midpoint theorem, can you say that SR is parallel to AC and SR is half of AC? आप बोल सकते हो ना बेटा, by using midpoint theorem. आपको एक्सप्लेन करी थी कि सिर्फ इस ट्राइंगल को देखना है, ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, और ये लाइन जो है SR वो थर्ड लाइन के दिस ट्राइंगल में, इन दिस ट्राइंगल एडीसी में, तो जो ये वाली लाइन है आफ्टर जॉइनिंग मिड पॉइंट्स, दिस इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, यही होता है. सो मार्क दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ऑल्सो इन ट्राइंगल ABC, सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC, P midpoint, P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. बेटा P midpoint है AB का, Q midpoint है BC का. So by midpoint theorem, you can say that PQ is parallel to AC. This implies that PQ parallel to AC and PQ half of AC. Mark this is equation number 2. From 1 and 2, in the same way beta which you did in question number 1. From 1 and 2 से क्या आ गया? देखो SR parallel है AC के और AC parallel है PQ के, तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा? SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ. Why? Because PQ भी half of AC के इक्वल है और SR भी half of AC के इक्वल है, तो half of AC कॉमन हो गया दोनों तरफ से, तो PQ किसके इक्वल आ गया? SR के. So this implies that one pair of opposite sides are parallel and equal. One pair of opposite sides, देखो PQ SR के पैरेलल भी है और PQ SR के इक्वल भी है, तो इससे क्या हो गया? PQRS is a पैरेललोग्राम. PQRS क्या आ गया? एक पैरेललोग्राम आ गया. ठीक है, अब आपको क्या प्रूफ करना है कि PQRS एक रेक्टेंगल है. अब आप इजीली प्रूफ कर सकते हो इसको, ये रेक्टेंगल है. कैसे? जॉइन BD अनदर डायगोनल, जॉइन AC एंड BD, यही लिख लेना स्टार्टिंग में. जॉइन AC एंड BD, लेट diagonals AC and BD of rhombus ABCD. आपको रोम्बस की कंडीशन पता है ना कि जो रोम्बस के डायगोनल्स है वो कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं बेटा? 90 डिग्री पे. तो ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, लेट डायगोनल AC and BD of rhombus ABCD intersect at O. मान लो वो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, ऑल्सो डायगोनल्स ऑफ rhombus intersect each other at 90 डिग्री. जो डायगोनल्स के, जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं ना बेटा, वो 90 डिग्री पे क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं. तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है. ये 90 डिग्री हो गया. जो रोम्बस के डायगोनल्स है ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे. 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे. अब मैं इसको एक नाम दे देती हूँ, इसको M बोल देती हूँ और इसको M. कॉल दिस पॉइंट एज M और M. रेक्टेंगल के लिए मुझे एक एंगल 90 डिग्री शो करना है. ठीक है, रेक्टेंगल के लिए आई हैव टू शो दैट वन एंगल इज 90 डिग्री. बेटा इसके बाद में ये पोर्शन इरेज कर रही हूँ, यहाँ पे करूंगी.
अच्छा ये देखो, सिंस RQ is parallel to PS, since RQ, ये वाला ले लेते हैं, since RQ, ये जो Q आ रहा है वो किसके पैरेलल है, BD के पैरेलल है, इस पैरेलल टू BD, ये वाली लाइन बेटा इस लाइन के पैरेलल है अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करती हूँ तो, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स है तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, अगर कोई दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है तो वहां पे कितने भी पॉइंट होते हैं ना, ठीक है, मान लो ये AB पैरेलल है CD के, तो ये जो पॉइंट होंगे EF, मान लो इसी लाइन पे, अगर उसी लाइन पे जो पॉइंट्स लाई करते हैं तो वो पॉइंट PQ के भी पैरेलल होंगे। इसका मतलब ये होता है Q पैरेलल होंगे बिकॉज द होल लाइन इज पैरेलल टू अनदर होल लाइन। गॉट इट? तो यहां से आपने बोला सिंस RQ parallel to BD, so this implies that MQ is parallel to ON, also QN is parallel to MO। जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इससे क्या हो गया, This implies that MQNO is a parallelogram। ये क्या हो गया बेटा, ये पैरेललोग्राम हो गया ना, MOQN क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। और ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो जब ये पैरेललोग्राम बन गया, इधर देखो ये पैरेललोग्राम बन गया तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल O इज इक्वल टू एंगल Q बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। This implies that angle Q is equal to 90 degree. Why? Because angle O is equal to 90 degree. तो जब angle Q 90 डिग्री आ गया तो आपका प्रूफ हो गया। So this implies that PQRS is rectangle. क्यों रेक्टेंगल है बेटा? क्योंकि PQRS पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के लिए क्या चाहिए, ये साइड इस साइड के इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए, तो रेक्टेंगल में भी होती है। और एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना था तो यहाँ पे आपने प्रूफ कर दिया कि एंगल 90 डिग्री है। कैसे किया है, आपने एक पॉइंट M और N लिए हैं, कौन सी लाइन सेगमेंट पे, RQ और QP पे, और आपने बताया कि ये जो लाइन है इस पूरी लाइन के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये तो आपको पता ही ना, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे आएंगे वो दूसरी लाइन के पैरेलल ही होंगे ना। तो इसलिए आपने बोला ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इन द सेम वे दिस इज पैरेलल टू दिस। तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। जब ये एक पैरेललोग्राम बन गया और आपको ये पता था कि जो डायगोनल्स हैं रोम्बस के वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 90 डिग्री था और ये पैरेललोग्राम है और आपको पता है ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। जब ये 90 हो गया, एंगल Q 90 हो गया, तो ये PQRS क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। कम टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। The question is ABCD is a rectangle and PQ, R and S are the midpoint of the side AB, BC, CD and AD respectively. You have to show that PQ, RS is a rhombus. Beta, in question number 2, the last question which I did, in that question, in place of rectangle ABCD was the rhombus and in place of rhombus PQ, RS is the rectangle which you showed before this question. Before this question. इससे पहले आपने सॉल्व करा था ना, तो इस क्वेश्चन में एंड बोथ द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, इधर 2 और 3 100% कम्स इन एग्जाम फॉर 4 मार्क्स, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या करना है आपने, यू हैव गिवन अ रेक्टेंगल ABCD। बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में रेक्टेंगल के प्लेस में ABCD क्या था, आपका रोम्बस था, तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के ऑपोजिट है। A, B, C, D. This is the rectangle
and PQR are the midpoint, means P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of DC, and S is the midpoint of AB. Now after joining all these points PQRS, you have to prove that this PQRS is a rhombus. और rhombus की आपको प्रॉपर्टी पता है कि जो rhombus के साइड्स है ना, ऑल द साइड्स, वो सारी कैसे होती है, इक्वल होती है. तो इन शॉर्ट आपको ये शो करना है कि PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP. ऑल द साइड्स आपको इक्वल शो करनी है. सो कंस्ट्रक्शन जॉइन BD एंड AC, construction join BC and AD. और आपको पता है ना बेटा BC और AD क्या है? These are the diagonals of a rectangle. Also BC is equal to AD. ये क्या है, given है. Why this is given? Because ABCD is a rectangle. As ABCD is a rectangle. ABCD क्या है बेटा आपका, एक रेक्टेंगल है. ठीक है, मार्क दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इसको एक इक्वेशन नंबर 1 मार्क करो क्योंकि इसका आगे यूज होगा. ओके. इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी बेटा जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में किया था ना कि आपने PQRS को क्या प्रूफ किया था, पैरेललोग्राम शो किया था. तो मैं ये स्टेप्स डायरेक्ट करूंगी, पर आपने डायरेक्ट नहीं करने, आपने कहां से करना है, जैसे आपने सेम क्वेश्चन 1 और 2 में किए थे ना, एक एक स्टेप को आपने अच्छे से करना है. ठीक है. तो इन ट्राइंगल एबीसी, इस वाले ट्राइंगल में P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है बेटा, आप ये लिख लेना कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. Mark this is equation number 2. Similarly, in triangle ADC, ADC again by using midpoint theorem, again by using midpoint theorem, R is the midpoint of DC, S is the midpoint of AD. बेटा ये सारा का सारा पोर्शन मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहां से मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूं, पर आपको प्रॉपरली लिखना है. ठीक है. सो यू कैन से दैट SR इज पैरेलल टू AC and SR is half of AC. Mark this is equation number 3. From second and third, from equation second and third, देखो सेकेंड और थर्ड से आप क्या कह सकते हो, SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ. ठीक है, ये कंडीशन आ गई सेम जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड में किया था, ये दो कंडीशंस आ गई. सो दिस इंप्लाइज दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम. अगर PQRS पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या हुआ कि PQ इक्वल टू SP एंड RS इज इक्वल टू PQ. मार्क दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ये 4 आ गई. ठीक है. नाउ इन ट्राइंगल BCD, in triangle BCD by using midpoint theorem, by using midpoint theorem. अच्छा देखो इस वाले ट्राइंगल में R is the midpoint, R मिड पॉइंट किसका है बेटा, R is the midpoint of DC and Q is the midpoint of BC. ठीक है, तो आप मिडपॉइंट थ्योरम का यूज कर सकते हो इस वाले ट्राइंगल में. PRQ is parallel to BD and RQ half of BD. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 5 को दो. नाउ बाय यूजिंग 1 2 3 4 5, by using 1 2 3 4 5 कैसे, देखो बेटा PQ किसके इक्वल है, यहां देखो PQ किसके इक्वल है,
आर द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल एबीसीडी। इधर देखो बेटा, आर क्यू किसके इक्वल है, बीडी के। आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीडी, और बीडी किसके इक्वल है, एसी के। और यहां से एसी हाफ ऑफ एसी किसके इक्वल है, पी क्यू के। और भी शॉर्टकट में समझा देती हूँ बेटा, कंफ्यूज हो जाओगे। इधर देखो, आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इन प्लेस ऑफ एसी कैन यू राइट, इन प्लेस ऑफ बीडी कैन यू राइट एसी। आप हाफ ऑफ एसी लिख सकते हो इन प्लेस ऑफ बीडी, हाफ एज इट इज इन प्लेस ऑफ बीडी, यहां लिख देना यूजिंग 1। ठीक है, इसका मतलब नाउ फ्रॉम, अब इसको 6th इक्वेशन बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल दो। नाउ यूजिंग 6 सेकेंड एंड 6, यूजिंग सेकेंड एंड 6, सेकेंड और 6 से क्या हो गया, देखो ये भी हाफ ऑफ एसी है, ये भी हाफ ऑफ एसी है, तो आप कह सकते हो पी क्यू आर क्यू के इक्वल हो गया। पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, पी क्यू आर क्यू के इक्वल हो गया। इक्वेशन नंबर 7 मार्क कर दो। अच्छा देखो, अब आप ये वाली इक्वेशन देखो, नाउ फ्रॉम 4th एंड 7th, 4th एंड 7th से देखो पी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू इक्वल है एस पी के। ठीक है, और यहां से पी क्यू किसके इक्वल है, आर क्यू के। ठीक है, ये देखो आर क्यू का हो गया, आर क्यू के इक्वल क्या है, पी क्यू आ गया। और पी क्यू किसके इक्वल था, पी क्यू किसके इक्वल था, ये देखो इन दोनों इक्वेशन से। कौन सी इक्वेशन, एक ये इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इन सब से देखना। अभी आपने शो करा है कि आर क्यू पी क्यू के इक्वल है, आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, आपने ये शो किया है। और आपको पता है पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम है, तो पी क्यू किसके इक्वल है, एस पी के। पी क्यू किसके इक्वल है, एस पी के। और आर क्यू किसके इक्वल था, आर क्यू एस पी के था, तो पी क्यू किसके इक्वल होगा, पी क्यू एस आर के भी तो इक्वल होगा। ये जो पी क्यू है वो एस आर के भी इक्वल होगा। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया, सारी साइड से इक्वल होगी। ठीक है, आप इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 जितनी भी मार्क करिए सबको कंबाइन करोगे तो यू कैन प्रूव दिस पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। क्योंकि आपने पहले पी क्यू आर एस को क्या प्रूफ कर दिया था, रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया था। जब आपका पी क्यू आर एस वो है पैरेललोग्राम है, जब पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल है। और अभी आपने इन ट्रायंगल बीसीडी का यूज करके ये प्रूफ किया था कि आर क्यू पी क्यू के इक्वल है, तो वहां से आपके पास सारी साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड आई एम एंडिंग दिस video session 28 up to question number 3. Thank you so much.